ویلکم بیک ویورز، ایک بار پھر آپ کو مارننگ اسپاٹ وذ بلال خان میں خوش آمدید کہیں گے۔ آج اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مسئلہ شاید آپ کے والد صاحب یا دادا کے زمانے کا نہ ہو، یہ آپ کی ہی اپنی جنریشن کا مسئلہ، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر حادثات بڑھ گئے ہیں، RTO زیادہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن ان حادثات کے اندر جو ڈمپرز ہیں، جو واٹر ٹینکرز ہیں، یا پھر جو آئل ٹینکرز ہیں، یا پھر جو بڑے ٹرانسپورٹ ہیں، ان کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں۔ اب کیا وہی ذمہ دار ہیں یا کراچی کے لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے؟ کیا جو بائک چلانے والے ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ وہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی، لیکن اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جو واٹر ٹینکرز ہیں، جو ڈمپرز ہیں، ان کی ذمہ داری کہاں تک اور کتنی عائد ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت واٹر ٹینکر ایسوسیشن کے روح روا موجود ہیں، جیسے کہ بریک سے پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے حاجی ملک بادشاہ صاحب۔ بادشاہ صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کراچی شہر کے اندر یہ کام کرتے ہوئے؟ جی، یہ سوالات تو آپ نے بہت اچھا سوالات کیا۔ ہماری جو اس کراچی کے شہر کے اندر جو ہماری گزارا ہو گیا، میں سن 1988 میں کراچی آیا ہوں، میں خود 1988، اور اس کے بعد تقریباً سن 1991 میں سعودی عرب گیا۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے بیرونی ملک میں مزدوری کر کے اور وہاں سے پیسہ لا کر اپنا یہاں کاروبار شروع کیا۔ ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہے نا، وہ ہمارے والدین دادا پر دادا کے دور سے ہمارے ٹرانسپورٹ کا کاروبار۔ ٹھیک ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ کے کاروبار یہ نہیں کہ وہ آج سے شروع ہو گیا یا ہیوی ٹرانسپورٹ آج سے شہر میں چلتے ہیں، یہ کہاں زمانے سے جب سے پاکستان بنا ہے اس سے پہلے بھی چل رہا تھا۔ جب پاکستان نہیں تھا تو یہ ہیوی ٹرانسپورٹ چل رہا تھا۔ اب جو ابھی کے ایشو ہے، جو خاص کر شہر کراچی میں جو زیادہ تر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ واٹر ٹینکر مافیا یا ڈیمپر مافیا یا ہیوی ٹرانسپورٹ مافیا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مافیا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم وہی لوگ ہیں ٹرانسپورٹ جو پورے ملک کو چلانے والے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ٹیکس گورنمنٹ کے خزانے میں ہیوی ٹرانسپورٹ سے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہیوی ٹرانسپورٹ، اگر میں آپ کو پانی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اب پانی جو ہے نا ہیڈنگ میں جب ہم پانی لوڈ کرتے ہیں تو 1000 گیلن کا ہم 800 روپے دیتے ہیں۔ ایسے گاڑی ہے کہ 3000 سے لے کر 10,000 گیلن ایک گاڑی ہوتی ہے، تو آپ خود حساب لگائیں، اگر 10,000 گیلن ایک گاڑی میں لوڈ ہوتا ہے تو 7,500 روپے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پر گاڑی جو ہم لوڈ کرتے ہیں، تو اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ریٹ ہے وہ ہے 480 روپے۔ ٹھیک ہے۔ 1000 گیلن کی، تو ہم سے ڈبل لے رہے۔ تو اور باقی جو ایکسیڈنٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی پاکستانی شہری کو، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو یا کسی برادری سے تعلق ہو یا کسی تنظیم سے تعلق ہو، تو ہمیں انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم پرامن شہری ہیں، ہم پرامن پاکستانی ہیں، ہم اپنے ملک کو بچانا ہے اور اپنے ماحول کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایکسیڈنٹ جب ہوتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے، حادثے ہوتا رہتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ بیرونی ملک میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ میرے خیال میں سعودی عرب میں ہوتے ہیں، جو وہاں کے قانون بھی بہت بڑی سخت ہے، مگر وہاں کے قانون اس طرح ہے۔ میں نے خود 15-16 سال گزارا، سوریہ بھی گیا، لبنان بھی گیا، مصر بھی جا رہے تھے اور یمن بھی جا رہے تھے، ترک بھی جا رہے تھے۔ وہاں کے قانون اس طرح ہے، جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتے تو وہاں کے جو مرور، وہ کہتے ہیں کہ مرور آ گیا، یہاں جس طرح ٹریفک والے ہیں یا آپریشن پولیس ہے، تو وہ آ کر وقوع کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چاہے وہ جس کی بھی غلطی ہو وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہیوی ٹرانسپورٹ کے اوپر آپ نے غلطی ڈالیں۔ اچھا۔ چاہے جس کا جان ضائع ہو یا کوئی نقصانات مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دفعہ غلطی نہیں ہو سکتی، ہر دفعہ غلطی نہیں ہو سکتے۔ ایکسیڈنٹ جب بھی ہوتا ہے، کوئی ڈرائیور نہیں چاہتے اگر سامنے سے گزرتے ہیں۔ میں نے خود ڈرائیوری کیا 15-16 سال، تو ڈرائیور نہیں چاہتا، وہ سام کو بچانے کی کوشش کرتے کہ اس کو بھی بچاتے، اس کے اوپر گاڑیاں نہیں چڑھاتے، کیونکہ کہاوت ہے یہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ کا جو ڈرائیور کا جو تربیت ہے کہ بھائی کسی چیز کو بھی آپ نے بچانا ہوگا جو زندہ چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ڈرائیور یہ ایک تو بڑی حادثہ ہے کہ وہ انسان کا جان لے۔ اچھا، ایک سوال ہے، ایسی تربیت کہ آپ ڈمپر میں بیٹھے ہوئے، واٹر ٹینکر میں بیٹھے ہوئے، سامنے کوئی بھی زندہ چیز آئے تو اس کو بچانا ہے، یہ تربیت آپ لوگ دیتے ہیں، ایسا کیا ہو گیا کہ 750 لوگ لقمہ اجل بن گئے، 750 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے، اور وجہ صرف یہ نظر آتی ہے کہ ایک طرف ڈمپر ہے، دوسری طرف واٹر ٹینکر ہے؟ جی، یہ اب جو اسی سال میں
2025 में बहुत बड़ा मेरे भी फिगर है, एक बहुत 750 बड़ा लोग। एक्सीडेंट हुआ। और मगर ये एक्सीडेंट सिर्फ वाटर टैंकर या डैम्पर की वजह से नहीं हो, क्योंकि मेरे पास अभी इस मोबाइल में मौजूद है, मेरे ख्याल में सबसे कम एक्सीडेंट जो हुआ वो वाटर टैंकर और डैम्पर की हुई। जितने भी हेवी ट्रांसपोर्ट है जहां अगर एक्सीडेंट होता है तो वो ज्यादातर डैम्पर वाटर टैंकर के ऊपर डाल देते हैं। एक आवाज निकला हुआ है अभी। ऐसे चाहे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से हैं, चाहे वो हमारे कुछ सियासी पार्टी हैं, जो उन्होंने ये बार बार कहते हैं कि ये डैम्पर माफिया, क्योंकि बाज़ सियासी लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि ये टारगेट प्लानिंग है। वो भाई हादसा है, कोई बंदा नहीं चाहते हैं, तो इस पे थोड़ा जितने भी कराची शहर, अगर कोई चाहिए कि मेरे कराची शहर पूरे पाकिस्तानियों का है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे ठीक वो है। सिंधी है, चाहे वो गिलगित बलूचिस्तान है, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग वाले, ठीक है, ये सबका शहर है। क्योंकि पाकिस्तान ही बना था, उससे पहले भी ये सारे कौमियत कराची में रहते थे। ठीक है, पाकिस्तान बनने से तो हम सबसे पहले इधर आए हुए, तो इस पे ये इंतशार तो हम पिलाना नहीं चाहते हैं और इस तरह होना भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि कराची शहर के अवाम, नौजवान, लिखे पढ़े अवाम है, ये समझते हैं कि भाई ये क्या हो रहे हैं, ये अपने सियासत चमका रहे हैं, तो इस पे पानी डालना चाहिए। अच्छा, ताकि हमारे शहर में कोई ये नफरत ना हो। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन सवाल ये है, मैं एक चीज़ पर बिलीव करता हूँ व्यूअर्स, कि चाहे पख्तून हो, चाहे आपके बलोच हों, चाहे आपके सिंधी हों, चाहे आपके उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे आपके कोई भी किसी भी ज़बान की बात करने वाले उस शहर के अंदर बस चुके हैं अरसे दराज से। एक नस्ल नहीं, 2 नस्ल नहीं, 3 नस्लें यहाँ पर आ चुकी हैं। ये तो नहीं कर सकते या ये तो नहीं कह सकते आप कि इनको वापस भेजो, इनका शहर नहीं है, ये यहाँ पे ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, इनके साथ आप घुल मिल सकते हैं, आप कारोबार साथ कर सकते हैं, आप मोहब्बत साथ कर सकते हैं, दोनों तरफ से, या चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है और एक हाथ से सिर्फ चांटा ही पड़ता है। तो बहरहाल आप मिलके तो रह सकते हैं, इसका पैगाम तो आप दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये बादशाह साहब कि वाटर टैंकर तो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। पहले पानी का ऐसा मसला नहीं था कि अभी अब अगर आप देखें किसी हाइड्रेंट के पास 100 150 वाटर टैंकर खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये अभी पिछले कोई 10 सालों के अंदर ज़्यादा ये आबाद होना शुरू हुए हैं। क्या आपके ड्राइवर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई शख्स उसके लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर जाता है, कोई शख्स राइट साइड से ओवरटेक करता है, या कोई शख्स पीछे आ रहा है, तो आपने बचाना कैसे, या आप बस ब्रेक पर पैर नहीं रखते और छोड़ देते कि अल्लाह वास्ते कि टकरा जाए और फिर जाबाद भी हो जाए? बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है? ये तो कोई भी नहीं कर सकते। देखो, ड्राइवर जब बनता है ना, तो ये कम से कम वो पहले जो ना हेल्पर होते हैं गाड़ियों के साथ, 4 साल से लेकर 5 साल तक इसको ट्रेनिंग देते। ठीक है, मतलब बराबर वाली सीट पे बैठते हैं, बराबर वाली सीट पे बैठते हैं, फिर आराम आराम से उसको गाड़ियां देते हैं, चलाना सिखा देते हैं। फिर शहर में जब 2 साल तो भी वो हेल्पर रहते हैं, जब वो फुल ड्राइवर बन जाते हैं, उसके बाद वो शहर में साथ बैठते हैं और ड्राइवर साथ दूसरी बेंच में बैठते हैं कि आपने इस तरह बचाना, आपने इस तरह कोशिश करना, ये हेवी ट्रिपिंग है, इसकी ब्रेक एकदम आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हेवी ट्रिपिंग इस पे वजन होता है ना, कोई बाइक या छोटे कार तो नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग बराबर से देते हैं। 5-6 साल के बाद वो ड्राइवर बन जाते हैं, गाड़ियां में बैठाते हैं। ठीक है। अब ये जो बाइक वाले हैं, जाहिर बात है, मेरी अपनी भी बच्चे हैं, भतीजे हैं, बाइक भी है सबसे, हम उसको भी ये कहते हैं कि थोड़ा एहतियात से चला लिया। ठीक है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं ना, और बाइक में एक लाइन होना चाहिए। अब जो कराची शहर के रोड है, रोड तो वैसे भी बने हुए हैं, मगर रोड का ऐसे ही हालात है कि आपके इल्म में है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि रोड, आधा रोड अगर 60 फुट रोड है तो यही समझो कि 20 फुट रोड चक्का है, बाकी तो ट्राले, रेडी, दुकान, रश के कड़े होते हैं। आप गलत कर रहे हैं, मैं सही कर देता हूँ आपको। कराची शहर के रोड नहीं है, कराची शहर के गड्ढे हैं, गड्ढों के बीच में छोटी छोटी रोड है, छोटी छोटी रोड। और वो जो रोड है ना, तो वो भी ट्राले खड़े होते हैं, वहाँ रश के खड़े होते हैं, वहाँ जो है ना बाकायदा बता ले रहे हैं, तो उसकी बरफत से चला है रोड। तो यहाँ तकरीबन एक रोड रह जाते हैं, उसमें हेवी ट्रैफिक भी चलती है। किसको जा रहा है ये उस पर किसको जा रहा है? तो किसको जा रहा है, तो ले रहे हैं ना, वो आपके में है। अच्छा, बहरहाल अगर पता नहीं ले रहे हैं तो किस तरह रोड में आकर रोड में खड़े हो सकते हैं?
किसी की जरूरत है कि वो रोड में खड़े हो सकते हैं, रोड ट्रैफिक के लिए बने हुए। चलें, बहरहाल आपकी तरफ से पैगाम क्या जाएगा? कराची वालों को इस वक्त बड़ा दिल दुखा हुआ और पॉलिटिकल लोग बड़ा इसको कैश कर रहे हैं, नहीं क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि आप कराची में अरसे दराज से और काम भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अगर यहाँ से निकाल दिया जाए तो फिर क्या ये ट्रॉलर डंपर इनका काम करेगा कौन? क्या जो लोग इस वक्त बैठे हुए क्या वो काम करने के लिए तैयार हैं? वो ट्रॉले चलाएंगे, वो डंपर चलाएंगे? ऑब्वियसली उनका जवाब होगा नहीं, हम ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब करने के ऊपर तरजीह देते हैं। आप जरा पैगाम दे दें, क्या देना चाह रहे हैं? कोई मोहब्बत का पैगाम सबके लिए? हम मोहब्बत के पैगाम दे रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, शुक्र है। हमने कभी भी ये तफसद तो किया नहीं है कि ये कौन सी बरादरी की या कौन सी बरादरी की। ट्रांसपोर्ट में एक बरादरी नहीं है, वो सिर्फ पश्तूनों का नहीं है, वो हर कौम के, ठीक है, उर्दू स्पीकिंग का भी है, सिंधियों का भी है, बलोचों का भी है, पंजाबियों का भी है, ट्रांसपोर्टर हर बरादरी की है। हम ड्राइवर को भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा बड़े एहतियात से चला लिया करो। वेरी गुड। क्योंकि बाइक वाले हैं, नौजवान लड़के हैं, ठीक है, इसके इतने इल्म में नहीं होता, एहतियात करना चाहिए ताकि हमारे नौजवानों को जिंदगी बचे। और हम बाकी जो सियासी पार्टी वाले लोग हैं जो इंतशार पे लाते हैं, जो 10 तारीख को या 12 तारीख को वो कहना चाहते हैं कि हम हैवी ट्रांसपोर्ट को शेयर को दाखिले नहीं होने देंगे, खुदारा मेरा भी उसको गुजारिश है कि आप कानून हाथ में ना ले। ठीक है, अगर आप आ गए तो हम फिर भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, तो हम इंशाल्लाह वेरी गुड कानूनी लेवल से आपको शिकायत देंगे। वेरी गुड, कानूनी लेवल से हम शिकायत ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया हाजी मलिक बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आपने देखा व्यूअर्स के हर एंगल से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई। अब एक एंगल रह गया है, वो एंगल है आप लोग। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर भी आप फीडबैक दे सकते हैं। हमने ट्रैफिक के जो DIG है उनका भी मौक़िफ़ आपको बताया, हमने वाटर टैंकर डंपर एसोसिएशन और हमने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सारे आपके मौक़िफ़ उनके मौक़िफ़ अपने आपके सामने रखे। एक चीज़ और रह गई है, वो है इन तमाम चीज़ों को चलाने वाले ड्राइवर्स और आप, क्योंकि आपका सामना होता है उस ड्राइवर से, ड्राइवर और आप आमने सामने होते हैं। अब एक प्रोग्राम ऐसा इंतज़ार रहेगा आप लोगों को भी और मुझे भी, ये इंतज़ार की घड़ियाँ फौरी तौर पे ख़त्म करनी है कि ड्राइवर का जो है वो इंटरव्यू आपके सामने रखा जाए, और फिर उसके बाद मैं आऊँगा आप लोगों की तरफ कि आप लोगों की राय क्या है। जब तक के लिए इस प्रोग्राम का जिस तरह से पूरा एक टाइम फ्रेम बना होता है वो टाइम ख़त्म हो चुका है। कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देना, और आई होप के बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे कि ये सारी गलती इन लोगों की नहीं है, सारा मसला इनका नहीं है। कुछ लोग पॉलिटिकली पोलिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सियासी तौर पर दुकानें चमका रहे हैं, तो ज़रा उनको भी आंखें खोल के देखें कि क्या उस नारे के पीछे आप कहीं अंधे तो नहीं हो गए? क्या 30 साल के नारे लगाने वाले लोग आज अपने प्राडो में, अपने डिफेंस के बंगलों के अंदर और अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, बाहर इलाज करा रहे हैं, और रूल सिर्फ आप रहे हैं और नाम आ रहा है डंपर्स का, ट्रॉलर्स का? ज़रा इसको भी ज़रा सोचिएगा अगर आपको ये बात समझ में आए। अल्लाह।